Hello everyone, welcome back to our channel. So in the last lecture we have done maxima and minima of two independent variables, Taylor series, Maclaurin series and slope determination of line. And one last topic is remaining in differential calculus is homogeneous function. So write down the topic. Homogeneous function. See, an expression in which each and every term is of the same degree is called homogeneous function. What I told? Write down an expression in which every term is of the same degree is called homogeneous function. Means if we want to test whether a given function is homogeneous or not, then what we will do? See, if I am taking a function f x comma y and we have to determine whether this function is homogeneous or not, then we will do what? First we put kx for x, means in place of x we put kx, okay, and ky for y. So in place of y we put ky. Then if we get f of kx comma ky is equals to k raised to power n f x comma y, then this function will be homogeneous of degree n. Okay, so you can say that if we get this f kx comma ky is equals to kn fx comma y, then function is homogeneous of degree n. Let us take an example. See, if I am giving you fx comma y is equals to x raised to power 4, y raised to power 4 and x minus y, and I am asking that determine this fxy is a homogeneous function or not, and if this function is an homogeneous function, then find its degree. So how will you find? First we will do what? We will put kx for x and ky for y, means we will have to calculate f kx comma ky, means in place of x we will put kx. So this is kx raised to power 4, ky raised to power 4, this is kx minus ky. So we will get here k raised to power 4, x4 plus y4, and from here k x comma y, isn't it? We will get this or not? Yes. So this k will be 4 minus 1 and x4 plus y4 x minus y. See, this is the function, this means this is the same function which is asked in question, means we can represent that, means this is verified that f of kx comma ky we are getting k raised to power n fx comma y. We are getting or not? We are getting f kx comma ky as k raised to power 3. This is what? F x comma y. So we can say that this function is an homogeneous function, means the given function, this one is a homogeneous function of degree what? Degree 3. See, this is its degree. Okay, यहाँ पे क्या था? यहाँ डिग्री n थी, मतलब k का जो पावर आएगा वही होगी इसकी डिग्री. सो यू कैन से दैट दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. Write down one example.
फर्स्ट यू ट्राई टू कैलकुलेट इट। वीडियो पॉज करके आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर कैलकुलेट करने के बाद फिर वापस आओ और देखो। सो इस फिर से मैंने क्या बोला था, इसके लिए क्या पुट करना है, x की जगह kx एंड y की जगह ky। सो while we put x as kx and y as ky, see this will be what, kx raised to power 8 and this will be cos inverse kx by ky. This k will be cancelled out, means we are getting k raised to power 8 x raised to power 8 cos inverse x by y. Yes or no? Means this is nothing but f kx comma ky is equals to k raised to power 8 f x comma y. Means this function is also a homogeneous function of degree what, degree 8. So write down homogeneous function of degree 8. Let us take a few more examples. Now if I am taking fx comma y is equals to x square plus xy plus y square, then f kx comma ky will be what, k square x square plus kx into ky plus k square y square. See, in all of the three means three terms, k square is common, means k square x square plus xy plus y square, means f of kx comma ky is equals to k square f of x comma y. This is nothing but what, the given function, means it is also a homogeneous function of degree what, homogeneous function of degree 2. Yes or no? See, one more example I am taking. If I'll take fx comma y is equals to x6 cos inverse x by y plus y minus 6 sin x by y. इतने सारे कैलकुलेशन करने के मीन्स इतने सारे एग्जांपल्स के बाद ये तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. सी कैसे देखोगे, यहाँ पे अगर k पुट करोगे तो k रेज टू पावर 6 आएगा, यहाँ k पुट करोगे तो k कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी यहाँ पे जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है, सिंपली इसकी डिग्री, यानी k रेज टू पावर 6 आ रही है, यहाँ डिग्री 6 आ रही है. यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, k रेज टू पावर -6, यहाँ तो k कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी ये देखो, ये दोनों टर्म की जो डिग्री हो रही है वो क्या हो रही है, मीन्स अलग अलग हो जा रही है. इसकी डिग्री कितनी हो रही है, इसकी डिग्री है 6 इस वाले फंक्शन की, एंड इस वाले टर्म की कितनी डिग्री है, -6. तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन के डेफिनेशन में ही, कि an expression in which every term is of the same degree is called homogeneous function. But see here, these two expression are, means these two terms are not having same degree. This term having degree 6 and this term having degree -6. So this is not an homogeneous function. Okay, so not a homogeneous function. Okay, now see, here we are getting degree -6 or not, means you can say that degree can be negative also. इसके पहले हमें पॉजिटिव डिग्री मिल रही थी, तो डिग्री कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. वन मोर थिंग, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, देन आई विल कंक्लूड वन पॉइंट. सी, so I am taking f x comma y as x square plus y square root over x plus root over, you can say that, yes, let us say that root over x plus root over y. So if we put kx comma ky, see this will be k square, this here यहाँ पे भी k स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे भी k स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से k स्क्वायर बाहर ले रही हूँ. सो k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ पे देखो रूट के होगा, यानी k रेज टू पावर 1/2
root x plus root y. See, this is function f x comma y. So यहाँ से डिग्री हमें क्या मिल रही है? 2 minus 1 by 2, that is 3 by 2. So from these all questions you can say that, means you can have a conclusion that degree can be negative, positive, fractional or zero. Okay, so note this point, that degree of a function can be positive, negative, fractional or zero. Okay, so now moving to the next topic, next thing in this homogeneous function, that is Euler's theorem. See, what does Euler's theorem says? Euler's theorem says that if u is a function which is function of x comma y and u is a homogeneous function of degree n, then see, I'm writing the theorem, Euler's theorem. It says that if u is equals to fx comma y is homogeneous of degree n, मीन्स कोई u एक कोई फंक्शन है, u कोई होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है n, देन अगर क्वेश्चन में x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y निकालने हमें बोला गया, तो ये डायरेक्टली n u के बराबर हो जाता है. मीन्स दिस टर्म, मीन्स दिस डिफरेंशिएशन और दिस टर्म, यू कैन से दैट, मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहे तो डायरेक्टली आप इतना कैलकुलेट करने की बजाय जो इसकी डिग्री है n इंटू ये दिस फंक्शन u. ओके, दिस विल बी योर आंसर. And second thing in this also, that if there is given to calculate x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2y del y square, del 2u by del y square, then the value of this expression will be directly n into n minus 1 u, means this is n is what, where degree. Okay, note, see, Euler's theorem can be extended to a homogeneous function of any number of variables. Means if n number of variables are given, that is a function is given which is function of x1 x2 comma dot 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 up to xn. Okay, be a homogeneous function of x1 comma x2 comma dot dot up to xn of degree n, then the formula for x1 del f by the value for this one, means x1 del f by del x1 plus x2 del f by del x2 plus dot 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 up to xn del f by del xn will be nf. Means this is true for what, for n number of variables also. Okay, now let us see how the questions are plotted in homogeneous function in Euler's theorems. Okay, by using Euler's theorem. See, question will be given like that if function f x y is given as x raised to power 4 y raised to power 4 x minus y is a homogeneous function of degree 7, then find out first one, then find
x del u by del x plus y del u by del y, and second one x square del 2u by del x square plus y square del 2u by del y square plus 2xy del 2u by del x del y. Then simply what we can write it like that. See, so first of all we have to calculate what degree of this function. See, we can calculate degree of this function easily. You can मीन्स आप लोग वो लंबा मेथड यूज़ कर सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. देखो, आप यहाँ से शॉर्टकट आप अप्लाई करना स्टार्ट करो. ये देखो, ये एक्स रेज टू पावर 4 है, ये वाई रेज टू पावर 4 है. मीन्स यहाँ से भी के रेज टू पावर 4 निकलेगा और यहाँ से भी के रेज टू पावर 4 निकलेगा. यस और नो? ओ सॉरी, देयर हियर डिग्री इज ऑलरेडी गिवन. Okay, sorry. So degree is already given, so the answer of this will be what? 7u directly. Means 7u means this is u, means 7 x4 y4 divided by x minus y. This, the meaning of 7u is literally this, and the value of this will be n into n minus 1 u, means 7 into 7 minus 1 u, that is 42 u. Okay, let us take one more problem regarding this. So write down the question. Verify that u is equals to x cube plus y cube plus 3xy square is a homogeneous function of degree 3. Then we have to verify what? X del u by del x plus y del u by del x, sorry, del y del u by del y is equals to 3u. Means nothing but we have to verify that seriously this value is coming as 3u or not. Means really Euler's theorem is giving the exact value of this whole differentiation or not. So what we will do, first we calculate the value of this term by using what? By using our differentiation method, means partial differentiation, because this is given del u by del x, and we know that if a function is dependent on two or more variables. See here, this u is dependent on x and y both. So if a function is dependent on two or more variables, then we take what? We take partial differentiation. See, first calculate del u by del x. I'm going step by step. See, del u by del x. Del u by del x means partial differentiation of this. So what will be del u by del x? 3x square plus 3y square. Yes or no? And if we will calculate other term is del u by del y. Del u by del y will be 3y square plus 6xy. Yes or no? So what we will have to do means we have to verify this one. See, so we will multiply x to this one, means del u by del x, means x into 3x square plus 3y square, and plus y into 3y square plus 6xy, and we have to see that is this value is equals to 3u or not. 3u means 3 into x cube plus y cube plus 3xy square. So from here we are getting what? 3 x cube plus 3 xy square plus 3y cube and 6 xy square. So if we take 3 as common, we get x cube plus y cube, and this will be 2 plus 3, that is 3xy square, and that is equals to 3u. So this is verified.
सो इससे हमने क्या देखा कि यूलर्स थ्योरम सीरियसली यही चीज़ कैलकुलेट करके दे रहा है। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो जिसकी डिग्री n हो तो उसकी ये वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली हमें nu मिल जाएगी, और जो वो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू थी वो हमें क्या मिल जाएगी, n इंटू n माइनस वन u. Okay, now move to next point in Euler's theorem, that if, see, write down, if u is function of x comma y plus g x comma y, where f g are homogeneous function of degree m comma n respectively, then सी, अब इसमें क्या बोल रहा है, उस टाइम पे u जो थी वो बस फंक्शन ऑफ एक्स वाई थी, इसमें ये क्या बोल रहा है कि u जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है एंड प्लस g ऑफ एक्स कॉमा वाई है. सो वेयर क्या है, f और g होमोजीनियस फंक्शन है, ये दोनों साथ में होमोजीनियस फंक्शन है, मीन्स u इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि u को होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए ये दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए. लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये f और g ये पार्शियली, मीन्स ये एक होमोजीनियस फंक्शन है अपने में, और ये g वाला जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है अपने में, जिसकी डिग्री क्या है, m और n है. अगर ये दोनों इक्वल डिग्री हो जाती फिर तो हम पुराना वाला ही चीज़ लग जाता, मीन्स इसके पहले वाले जो मेथड थी वही लगती, क्योंकि ये यूं ही जो हो जाता हमारा वो क्या हो जाता, होमोजीनियस फंक्शन हो जाता. लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री अलग है और इसकी डिग्री अलग है, बट ये दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है. तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो राइट डाउन, देन x del u by del x plus y del u by del y will be equals to mf plus ng. Okay, and second one, x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square will be m into m minus 1 f plus n into n minus 1 g. Okay, you can take the example that we have already taken in the previous question, that was, one second, yes, see this one, this example. In this example, this function, if you say as f of x comma y, and if you will assume that this is g of x comma y, then this function is a homogeneous function of degree 6, and this function is also a homogeneous function of degree minus 6, but this u is not a homogeneous function. Here I was asking that this u is homogeneous function or not. You have, मीन्स हमें क्या डिटरमाइन करना था, इस u के बारे में. बट नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें u के बारे में, होमोजीनियस फंक्शन u होमोजीनियस है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर ये इंडिविजुअली और ये इंडिविजुअली एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी एम एफ प्लस एन जी. मीन्स अगर वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँ, क्वेश्चन क्या था, u is equals to x6 cos inverse x by y plus y minus 6 sin x by y. तो इसमें हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अब देखो, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 6 है, और इसकी डिग्री क्या है, -6 है. मीन्स हमें जो m की वैल्यू मिल गई वो 6 मिल गई, और n की वैल्यू जो मिल गई वो -6 मिल गई. सो ईज़िली हमारा पहला टर्म ये, मतलब x del u by del x प्लस y del u by del y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू दिस फंक्शन, let us say it as f and say it as g, 6f minus 6g. Yes or no? Means 6 into x6
cos inverse x by y minus 6 into y minus 6 sin inverse, or you can say sine, though this is sine, sorry, x by y. Yes or no? And you can calculate this also. You calculate it by self. Okay. Now a third form is also included in Euler's theorem. We have till now studied about two forms, where in first one u was what, homogeneous function, and in second one u was not homogeneous function, but f and g was homogeneous function. Now write down third type, that if u is function of x comma y is not a homogeneous function, but f of u is homogeneous of degree n, then see, इसमें क्या बोल रहा है कि u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, बट f ऑफ u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। देन जो है इसका जब एग्जांपल देखोगे आप तो आप अच्छे से समझोगे। अभी ये आप देखो, देन फर्स्ट वन x del u by del x plus y del u by del y will be equals to n f u divided by f dash u, and let us say this term as gu. Okay, so gu say second term, that is x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square will be equals to this gu, means gu g dash u minus 1, means this term gu is nothing but this term, so gu into g dash u minus 1. Now let us take one example of this type. Okay, now it will be clear, means after that it will be, this point will be clear to you. Okay, write down, if u is equals to tan inverse x cube plus y cube x minus y is not homogeneous function. सी आप लोग ये कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे अगर ये tan इनवर्स, अगर यहाँ मैंने क्या किया, चलो पहले चेक ही कर लेते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन रियली में है या नहीं। तो यू के एक्स कॉमा के वाई पुट करेंगे, सो tan इनवर्स सी दिस विल बी के क्यूब y cube and this will be k x minus y. सी ये जो k स्क्वायर वाला टर्म है ये बाहर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स ये जो हमारी इनिशियल जो फंक्शन थी यू जो फंक्शन थी वो टोटली अलग हो जा रही है। सो ये क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये डिफाइन भी कर दिया था दैट दिस वन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। बट let's see here that if we take means इसे अगर हम लोग इधर ले जाएंगे, that is tan u, so tan u will be equals to x cube plus y cube by x minus y. Now see that this tan u is a homogeneous function, yes or no? This tan u is a homogeneous function of डिग्री 2। मीन्स मैंने टाइप में क्या लिखाया था कि यही कि u इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। बट एफ यू जो हो जाएगा, मीन्स एफ जब हम इधर ले आएंगे, मीन्स एफ यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा।
तो हम लोग कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मीन्स तब हमारी ये तो वैल्यू दे दिया और इसका डिग्री क्या बताया, 2 बताया। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इसकी वैल्यू होगी NFU divided by F dash u. See here FU is what? FU is this tan u. So NFU degree कितनी है 2. So this will be 2 tan u and differentiation of tan u is sec square u. So this is sec square u. Break it down, 2 sin u by cos u into cos square u. That will be sin 2u. So answer will be what? The value of this one will be sin 2u. And now we have to what? We have to assume this as gu. Now for calculating second term, that is x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square, what we take, gu into g dash u minus 1. So our gu is what, sin 2u. So answer will be sin 2u. Differentiation of sin 2u will be 2 cos 2u minus 1. So we get the value of this one as sin 2u into 2 cos 2u minus 1. Okay. Now this was the last topic of differential calculus. Now after this topic we will move to integral calculus, but before that let us solve some problems. Basically interesting problems means ये सब important question अगर आप solve करोगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत easy पड़ जाएगा गेट के question solve करना या फिर कोई भी other text book के. Okay. So let us do that. The derivative of symmetric function drawn in given figure will look like this. Means this is the given figure and इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है. तो इसकी डेरिवेटिव किस टाइप की दिखेगी हमें. सी डेरिवेटिव इज व्हाट मीन्स, हमें ये अगर फंक्शन कोई एफ एक्स है और लेट अस से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट dy by dx, and dy by dx we know that it is nothing but tangent. See, and we will find we know that dy by dx we will find in case of increasing and decreasing function also. See, so in this case if you take this graph, see for this region, if this is x and this is fx, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ से ये जब x क्या हो रहा है, यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है, इधर साइड तो x इंक्रीज कर रहा है. इस पोर्शन में देखना आप, पार्ट 1 में x इंक्रीज कर रहा है तो हमारी fx क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है. और पार्ट 2 में देखना, जब ये x इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. तो यू कैन से दैट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ये सर नो, मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइम पे ही बताया था, मैं रिवाइज करा देती हूँ. देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन उसे बोलते हैं जिसकी dy बाई dx की वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है. और x इंक्रीज जब करता है तो fx भी इंक्रीज करता है, या फिर x डिक्रीज करता है तो fx भी डिक्रीज करता है. ये 3 कंडीशन हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की होती है. ओके. और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन मैंने बताई थी, डिक्रीजिंग फंक्शन की मैंने बताई थी कि dy बाई dx वहाँ पे क्या होता है, लेस देन 0 होता है. और क्या होता है, व्हेन जब x इंक्रीज करता है तो fx डिक्रीज करता है, और जब x डिक्रीज करता है तो fx इंक्रीज करता है. तो ये दोनों कंडीशन मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बताई थी. अब यहाँ से देखो आप, पार्ट 1 जो है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है या नहीं. सो यहाँ पे जो यहाँ की जो फंक्शन होगी वो क्या, यहाँ पे जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. यस और नो. सो इस फंक्शन से क्या पता चल रहा है कि ये देखो, यहाँ पे
सिंस ये इंक्रीजिंग है, इधर इतना साइड क्या था हमारा, मैंने अभी बताया था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो अगर जिस साइड मतलब जिस एरिया में या जो भी जिस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और अगर जिस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो होता है, उस इंटरवल में हमें जो एफ एक्स की वैल्यू मिलती है, याद रखना मैं बोल रही हूँ एफ एक्स की वैल्यू, ओके। सो एफ एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, जब मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें इंटरवल्स निकालने थे कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो जहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा था वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही थी। अगर आपको आप लेक्चर वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ओके। सो तो जहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जहाँ पे डिक्रीजिंग होगा वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इन चारों में देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। देखो फंक्शन मतलब दिस एफ एक्स दैट मीन्स वाई, वाई की वैल्यू तो ऊपर साइड पॉजिटिव होती है ना, तो ये दोनों में तो पॉजिटिव आ रही है दोनों साइड में। यहाँ पे भी देखो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे इंक्रीजिंग था तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था और इधर साइड निगेटिव होना चाहिए था। यहाँ पे वाई की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है और इस वाले पार्ट में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। So this question is also asked in GATE and in civil engineering department. Okay. बहुत ही conceptual question था, बहुत ही अच्छा question था ये. Okay, now let us take problem number 3. So write down the question. Problem 3. The maximum area of rectangle whose vertices lies on the ellipse x square plus 4y square is equals to 1. मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस लाइज ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/4 का 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. मीन्स ये जो एलिप्स होगा उसका सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा, और जो एक्सिस को कट करेगा, यार ये देखो आप इसकी सेंटर हमें क्या पता चल गई, 0,0 मीन्स ऑरिजिन, और इसका जो रेडियस होगा वो 1 होगा. देखो मैंने ये एक एलिप्स ड्रॉ किया, इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो मैक्सिमम एरिया, एक रेक्टेंगल मैंने अंदर में ड्रॉ कर लिया एलिप्स के. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करूँगी और पोलर फॉर्म में इसके एंगल के फॉर्म में इसके क्या लिखूँगी, मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँगी रेक्टेंगल के. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे हम लोग लेते हैं. एंड इधर साइड क्या हो जाएगा, -a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा -a cos थीटा -b साइन थीटा, ये वाली पॉइंट, और ये हो जाएगी a cos थीटा -b साइन थीटा. यस और नो. सी हमें निकालनी क्या है, हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है. तो पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख के देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा. सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी व्हाट, ए will be equals to L into B, and our L is, if you calculate the length, you will got what, 2a cos theta. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, 2a cos theta है ना. सो 2a cos theta इनटू, अगर ब्रेड्थ आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2b sin थीटा. मीन्स a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 sin, यस
this is 4ab cos theta into sin theta, and we know that 2 sin theta into cos theta is 2 sin 2 theta. मीन्स अगर हम यहाँ से 2 लेके और यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा 2ab sin 2 थीटा. और हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो मैक्सिमम एरिया, अब यार देखो आप यहाँ पे आप मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए एरिया को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट निकाल के फिर उसके बाद पुट करके निकाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे सिंपली क्या पता चल रहा है कि अगर थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये तो पता होगा आप लोग को. यानी साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है. तो ये जो है साइन 2 थीटा मीन्स एरिया मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है हमारा. ये जो ए बी है वो क्या, वो लेंथ ही ना है, तो वो तो कांस्टेंट है हमारा. हमारी जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है. सो थीटा जब वेरिएबल है तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, जो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा. तो थीटा की वैल्यू हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी होगी, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 1 लेनी होगी. सो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल बी व्हाट. सो साइन 90 होता है हमारा क्या, 1 होता है, यानी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90, यानी थीटा क्या लेनी होगी, हमें 45 लेनी होगी. ओके, सो डायरेक्टली आप ये ले लो, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें 1 होनी चाहिए. तो एरिया क्या निकल आएगा, 2ab. यहाँ से हमें एरिया क्या निकल गया, 2ab. अब ये देखो आप a की वैल्यू, ये एलिप्स से आप जब लोगे तो a की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये जो नीचे वाला होता है वो a ही तो होता है, और ये जो होता है वो b होती है, b की टर्म. सो एरिया क्या हो जाएगी, 2 into 1 into 1/2, that is 1. So आंसर क्या हो गया, 1. ओके, नाउ लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस हैज़ अ हाइट ऑफ. हमें क्या निकालनी है, एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर. मीन्स एक स्फीयर है, उसके अंदर हमें एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. ये एक मैंने राइट सर्कुलर कोन लिया, इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्फेयर के अंदर स्फेयर की रेडियस कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है. मीन्स यहाँ से जो यहाँ की वैल्यू होगी वो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये सुनो सॉरी, स्फेयर की वॉल्यूम स्फेयर की रेडियस 1 मीटर है. ये जो रेडियस है वो किसका है, राइट सर्कुलर कोन का है. तो लेट अस से दिस इज एट r, तो मैंने ये r माना, और ये जो हाइट है मीन्स इतनी दूर की जो है उसे मैंने h माना, और ये टोटल जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, h+1 होगी कि नहीं. यस. अब देखो इस वाले कोन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. मीन्स यू कैन राइट एज h² + r² इज इक्वल्स टू 1. यस और नो. एंड फ्रॉम हियर, सॉरी, इसे आप लोग h मान लो हाइट, क्योंकि हमें यही हाइट तो कैलकुलेट करना. अब इसमें ऐसे करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, फिर भी कन्वीनियंसी के लिए मैंने इसे h माना. तो ये क्या हो जाएगा, h-1 हो जाएगा. यस और नो. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी हमें आ रही, h-1 का स्क्वायर प्लस r² इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर. यस और नो. दिस h-1 स्क्वायर प्लस r² विल बी इक्वल्स टू दिस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस. मीन्स ये तो पता ही होगा, छोड़ो आप. चलो यहाँ से r² क्या मिल जाएगी हमें, r² मिल जाएगी 1 माइनस ये सारी की सारी टर्म तो उधर चली जाएंगी. सो दिस विल बी h² माइनस 2h + 1 मीन्स 1 माइनस h² प्लस 2h प्लस -1 मीन्स 2h माइनस h². मीन्स हमें जो r की वैल्यू मिली r² की वो क्या मिली, 2h माइनस
एच स्क्वायर। ये मैंने आर की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की? सी हमें क्या निकालना है, ये जो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और हमें क्या पता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस नो यहाँ पे देखो h की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, लेकिन एक और वेरिएबल आ रहा है r। अब इसे हमें क्या h के टर्म में लिखना होगा, सो दैट अगर हमें लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालनी है तो हमें तो ये डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो जाते, तो इसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे लिए ये ईजी पड़ जाएगा। देखो अब आप 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पुट कर दो 2h माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। सो वॉल्यूम विल बी वॉट, 1/3 पाई 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब हमें वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकाली यानी वी डैश निकालनी है। वी डैश आप निकालोगे तो क्या आएगी वी डैश यहाँ से, 1/3 पाई 4h माइनस 3h स्क्वायर। यस और नो, यही आएगी ना। अब इसे हमें जीरो पुट करना होगा, तो जब जीरो पुट करोगे तो आप क्या हो गया, h कॉमन लोगे, 4h माइनस 3h स्क्वायर is equals to 0. So you can write it also as 3h square minus 4h is equals to 0. So h common, 3h minus 4 is equals to 0. तो h की वैल्यू 0 और क्या आई 4/3 आई, दो वैल्यू आई हमारे पास। अब हमें चेक क्या करना है कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें f डबल डैश x निकालना होगा। सो v डबल डैश निकालेंगे। सो v डबल डैश क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई, इसे डिफ्रेंशिएट करो 4 माइनस 6h। अब यहाँ पे 0 और 4/3 पुट करो। अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, सिंस ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 4/3 पाई, मीन्स ये तो क्या आ रही है ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वहीं अगर आप 4/3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगी 1/3 पाई 4 माइनस 4/3, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो h की वैल्यू कितनी आई फॉर मैक्सिमम वैल्यू 4/3 मीटर, और हमें यही फाइंड आउट करना था, यही ना फाइंड आउट करना था। देखना आप क्या लिखा था कि लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी इसकी। सो हमें हाइट क्या मिल गई 4/3 मीटर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। हमें लिमिट फाइंड करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, और दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी अभी तक जो हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, वो एक वेरिएबल के लिए फाइंड आउट करते थे। इसमें देखो आप टू वेरिएबल्स आ गए, यस और नो, तो टू वेरिएबल्स आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ कर्व होता है ना वो एज्यूम करते हैं हम लोग। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे सर्किल का इक्वेशन आपको इजी लगता है तो वो कर सकते हो, या किसी का भी कर सकते हो आप, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट है, सी मैं कन्वीनियंसी के लिए बता रही हूँ, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास कौन सा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। सो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एज्यूम करेंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन पे मत चले जाना कि हाँ सर्कल का ले लिया या जो भी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेना इस केस में। ओके, अब देखो स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये इक्वेशन होती है, यस और नो। मीन्स हमें क्या करना होगा, y की जगह इधर आप पुट कर दो mx और x की जगह y/m पुट कर दो। हम क्या करेंगे, y की जगह mx पुट करेंगे। सी अगर मैंने यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने m की वैल्यू 1 ली, ठीक है, अगर मैंने m की वैल्यू 1 ली तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू x। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 1/2 आंसर आएगा इसका। आंसर नहीं मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। अब जब मैंने m को 2 कंसीडर किया, तो जब मैंने 2 कंसीडर किया तो y इज़ इक्वल्स टू 2x हो जाएगा।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो आप यहाँ जब 2x पुट करोगे तो ये 2x² हो गया और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4x², मीन्स यहाँ से क्या आया 2/5 c। तो अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यू मीन्स m की जितनी डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं उतनी ही हमें जो लिमिट की वैल्यू मिल रही है वो डिफरेंट मिल रही है। तो अगर m की सारी वैल्यू के लिए लिमिट की वैल्यू सेम मिलती तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती, बट यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। सो ये जो लिमिट है, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका एक और तरीका है, आप सिंपली क्या कर सकते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स ही पुट करते। जब एम एक्स पुट करते तो क्या होता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 mx² डिवाइडेड बाई m² प्लस x² मीन्स mx² m² प्लस 1। यहाँ पे देखो ये जो लिमिट की वैल्यू हो रही है वो m पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये m की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज करेंगे ये लिमिट की वैल्यू चेंज होते जाएगी। तो अगर लिमिट की वैल्यू m पर डिपेंड कर गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। So that is the last question of this lecture, and here we ended differential calculus. Now from the next lecture we will start integral calculus. Okay, and before that, if you like this video, please make sure to like, comment, share and subscribe, and join our Telegram channel for daily practice paper. Thank you.